Hello, good evening, dear students. Hello. Yes, again, that our topic was national income. Our topic was measurement of national income, chapter third, fourth, second, whatever. To try to understand how to calculate national income. There are three methods. There are the three methods. The one method is the first is flow of output method. Yes, yesterday Sally put a one question. So how to calculate national income numerical, which cover all concept, it will be help to us, and tell me sir, how to calculate national income disposable method. So today I'll prepare something. A flow of output method, the first method, this is called product method. The second who is connected? Sneha. Okay, the second is flow of income method, and the third is flow of expenditure, यानी expenditure method. बार बार हम किसी चीज को, किसी चैप्टर को जितनी बार हम पढ़ेंगे उतनी ही वीकनेस हमारी दूर होती चली जाएगी, उतनी ही हमारे डाउट दूर होते चले जाएंगे. एंड वन थिंग, एक कहीं पर एक स्लोगन लिखा गया है कि अगर आप पूछोगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा. मतलब जब तक आप मेरे से डिस्कस नहीं करोगे तब तक आप किसी डाउट नहीं लोगे, तब तक आप उस चीज को समझ नहीं सकते. ये अदर केस है कि आप सेल्फ स्टडी करके ज्यादा बेटर समझ सकते हो. Now there are the three methods. Try to understand. दोबारा ध्यान से देखना. Flow of output method, income method, expenditure method. अब बात करते हैं सबसे पहले हम product method की. This method measure the domestic income या GDP. This method measure GDP by estimating contribution of each producing enterprises in the domestic territory of the country in the accounting year. This method measure domestic income or calculate gross domestic product by estimating the final value or final goods from the each that domestic territory, each sector of domestic territory of a country in a accounting year, by estimating the contribution of each producing enterprises. What is the meaning of this? Contribution of each producing enterprises. How many producing enterprise? There are the three enterprises. One is primary sector, then the secondary sector, Secondary. and one is a tertiary sector. Tertiary. Sneha, is it right? Yes, sir. Okay, are you getting Yes, my sir. point? समझ में आ रहा है Yes, बेटा? sir. Yes, sir. प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्सरी सेक्टर के अंदर जो Tertiary वैल्यू sector. फाइनल आउटपुट है, हम उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे. Then प्रियंका, तो प्रोडक्ट मेथड इज आल्सो नोन एज नेट आउटपुट. इसके तीन नेम है. इज आल्सो कॉल्ड, द फर्स्ट इज नेट आउटपुट मेथड, द सेकंड इज इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आपसे पूछा जाता है नेट आउटपुट मेथड. आउटपुट का मतलब यहाँ पर क्या बताना चाहता है कि ये सेक्टर किससे कनेक्टेड है. ये सेक्टर जुड़ा है प्रोडक्शन से, और प्रोडक्शन हमारे तीन सेक्टर में होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में. थर्ड मेथड इज, दिस इज आल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, and the one is industrial origin method, and the one is flow of product method. Again see first, the first is net output method, the second industrial origin method, and the one is the flow of product method. यानी product method है, output method है या industrial method है, these are the same meaning of the one product method. Clear?
let's first clarify the meaning of the three most important terms to be used in this sector. Used in this sector, in this method. इस मेथड में तीन इंपॉर्टेंट टर्म हम क्या करते हैं, मोस्टली यूज करते हैं. प्रियंका, हेलो, यस सर। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, द फर्स्ट इज, पहला क्या है जी, यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट. Output. पहला मेथड क्लियर है, पहला वर्ड यूज होता है यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट. सेकंड टर्म यहाँ पे इस मेथड में यूज होती है इंटरमीडिएट कंजम्पशन आईसी. तो वन इज तीनों, फिर लास्ट में एक वर्ड निकलता है वैल्यू एडिड. वैल्यू एडिड गुड्स, और इसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू एडिड को जीडीपी. और वो किस पे निकलती है, एमपी पे. हम हमेशा दो टर्म यूज करेंगे, एक एमपी और एक एफसी. ने कहा मुझे, हेलो, एक बच्चे ने यस कहा सर। कि सर एमपी क्या है और एफसी क्या है. मैंने कहा कि तमन्ना तुम क्या खरीदते हो मार्केट. तो तमन्ना ने बोला कि सर मोस्टली गुड्स से मार्केट से खरीदते, जितने भी हम भी खरीदते, आप भी खरीदते, सभी खरीदते मार्केट से. कहते ठीक है, मैं मार्केट से क्या खरीद के लेके आऊं, एक बैग खरीद के लेके आऊं. बैग की जो प्राइस है वो 500 रुपीज है. 500 में हम अगर बात करें तो बैग रॉ मटेरियल होता है, उसको बनाने वाले होते हैं, उनको फैक्टर बोलते हैं. और फिर उसमें मालिक क्या करता है, जो बेचने वाला होता है वो अपनी प्राइस ऐड करता है, गवर्नमेंट उससे हमसे टैक्स लेती है. ठीक है, तो इस प्रकार वस्तु को मतलब 3-4 स्टेज पे गुजर जाने के बाद जो प्राइस डिसाइड होती है वो एमपी होता है, यानी मार्केट प्राइस. अब एक बैग की प्राइस कितने रुपए रखी हमने, 500 रुपए. उसके अंदर टैक्स इंक्लूड है, इनडायरेक्ट टैक्स. कौन सा टैक्स लगता है उसके ऊपर, जीएसटी. कौन सा टैक्स लगता है जी, जीएसटी। GST. फिर एक बच्चे ने पूछा सर एफसी क्या है, फैक्टर कॉस्ट. मैं कहता मार्केट वैल्यू में से आप उसको, जो बनाने वाले हैं, जिन्होंने, कारीगर ने जिसको बनाया, केवल उसकी वैल्यू निकाल रख लो और बाकी इनडायरेक्ट टैक्स उसमें से माइनस कर दो. तो क्या बच जाएगा हमारे पास, फैक्टर कॉस्ट. हमारे देश की जो नेशनल इनकम निकाली जाती है उसमें से टैक्स माइनस किया जाता है और सब्सिडीज को ऐड किया जाता है. तो इसलिए हम उसको नेशनल इनकम को जब भी निकालते हैं तो किस पे निकालेंगे, एफसी पे. किस पे निकालेंगे, एफसी पे. FC पे. ठीक है, ध्यान रखना. कुछ याद हो रहा है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. लेट्स सी. अब तीन बातों में पहला वर्ड मैंने लिखा वैल्यू ऑफ आउटपुट. पहला क्या था यहाँ पे, वैल्यू ऑफ आउटपुट. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है, अब हम सैली की उसकी बात करते हैं, ईशा की बात करते हैं. ईशा के घर में कुछ वस्तुएं हैं, उनका एक मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और वो क्या बनाते हैं, मोबाइल बनाने की उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है. तो उन्होंने 1000 मोबाइल प्रोड्यूस किए एक साल में. उसमें से उन्होंने 500-400 बेच दिए. कितने बचे उनके पास, 600. तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी मैंने कहा कि एक कितनी क्वांटिटी बनाई थी उन्होंने, 1000. अगर मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि ठीक है, मैंने कहा कि ईशा ने 1000 मोबाइल बनाए, उनकी प्राइस कितने रुपए लगाते हैं, अंदाजा हम जस्ट एक बार करते हैं काउंट, कितने रुपए लगाए प्राइस से, 1500. मोबाइल की प्राइस 1000 पर कर लेंगे सर. हाँ जी. अगर हम कहते हैं कि इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, किसके साथ मल्टीप्लाई करें, अगर हम कहते हैं कि एक मोबाइल की वैल्यू 8000 रुपए ही लगा लो, ठीक है, इजिकल टू कितना हो जाएगा, देखो 8 1 2 3 1 2 3, ये हो जाएगा 8 लाख रुपीज. ठीक है, 800 1000 से भी ज्यादा बनेगी तो 80 लाख रुपए बने, 80 लाख बन गए ना. तो 80 लाख रुपए, 80 लाख रुपीज इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए आउटपुट. ये क्या है, वैल्यू ऑफ ए आउटपुट. इसमें से क्या किया, 80 लाख में से माइनस है, उन्होंने 40 लाख के क्या किए, कितने बेचने के लिए कहा था मैंने,
40 लाख के बेच दिए जी, 40% बेच दिए ना, तो 40% कितने मोबाइल Yes, sir. आता है? 60%. जस्ट अज्यूम हम करते हैं थोड़ा सा इसको, थोड़ा ज्यादा एरिया ना करते हुए हम इसमें कम कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा यकीन नहीं होगा। उन्होंने मोबाइल की जो प्रोडक्शन की वो ज्यादा बन गई, 100 कर लेते हैं और एक वैल्यू कितने रखते हैं 1 2 3, ठीक है जी, इजिकल टू, अब देखो कितनी बनी 1 2 3 1 2, ठीक है, ये बन गए 8 लाख। 8 लाख माइनस उन्होंने कितने मोबाइल बेच दिए, जस्ट अज्यूम करते थोड़ा सा 2 लाख रुपए के बेच दिए। अब कितने मोबाइल उनके स्टॉक के पास रह गए? 600. 6 लाख रुपए हमारे क्या कहलाए, बता सकते हो आप? 6 लाख रुपीज इज इक्वल टू स्टॉक है। ये क्या जी? स्टॉक है। सेल्स Stock. चेंज इन स्टॉक, यहाँ पर क्या आना चाहिए था? सेल्स प्लस, प्लस का निशान नहीं लगा, हाँ जी, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब यहाँ वैल्यू ऑफ आउटपुट में मैं लिखना चाहूंगा कि 6 लाख रुपए का तो स्टॉक है, बेचे कितने रुपए के? 2 लाख रुपए के बेचे, टोटल कितने लाख रुपए का बन जाएगा? 8 लाख। 8 lakh. 8 लाख इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट है। ये ध्यान रखना कि जितनी देश में वस्तु प्रोड्यूस की जाती हैं, द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स मल्टीप्लाई द प्राइस इज इक्वल टू सेल्स। वो हमारी क्या कहलाई जाएगी? सेल्स कहलाएगी। सेल्स के मतलब सेल्स हो गए, सेल्स मतलब इज इक्वल टू, पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि ठीक है हमने बेचा कितना, हमने बेचे, मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, हेलो, कितने रुपए के बेचे? 2 लाख रुपीज के। 2 lakh. तो कितने रुपए का रह गया? 6 लाख का, इज इक्वल टू 8 lakh. वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा होगा टोटल 8 लाख रुपीज, 6 lakh. ठीक है, 8 लाख रुपीज है। Yes. प्लस इसमें हम ऐड कर सकते हैं अगर हमारे पास हो तो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, कि भाई खुद के लिए कितना बनाया, तो इस तरीके से वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाली जाती है। अब कहते हैं ग्रोस वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या जोड़ा? मैंने कुछ भी नहीं किया, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू ग्रोस भी कह सकता हूँ, और मैं इस तरीके से भी इस चीज को शेयर कर सकता हूँ। अगर मेरे पास मान लो सेल्स नहीं है, चेंजिंग स्टॉक आइटम नहीं है क्वेश्चन में, और वहां पर क्या दिया हुआ है? फाइनल आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर का दिया हुआ है, तो मैं तीनों को ऐड करने के बाद भी मैं क्या निकाल सकता हूँ? ग्रोस वैल्यू ऑफ ए आउटपुट। क्लियर दिस थिंग? Yes, उसके sir. बाद सेल्स आती है, सेल्स क्लियर हो गया, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। फिर चेंज इन स्टॉक छोटा सा टर्म है, बहुत आसान है, बार बार आएगा, तो इसको कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस से ओपनिंग स्टॉक। अगर ये भी नहीं समझ में आता तो मेरे से पूछो दोबारा, डाउट है किसी को? चेंज No, sir. स्टॉक मतलब मेरे पास स्टार्टिंग में जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो मोबाइल कितने थे उनके पास? 20 थे, लेकिन 31 दिसंबर को उनके पास कितने हो गए? 100। तो 100 माइनस 20, तो कितना चेंज आया स्टॉक में? 80 रुपए, 80 मोबाइल का, 80 क्वांटिटी ऑफ मोबाइल, ठीक है, कितनी क्वांटिटी थी? 80 का। दिस इज कॉल्ड चेंज इन स्टॉक। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन का मतलब है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ आउटपुट यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर ने खुद के लिए कितना यूज किया, उसको बोलते हैं सेल्फ। यहां तक डाउट नहीं है? सेल्स क्लियर है? डोमेस्टिक सेल्स को दो तरीके से मापते हैं, सेल्स इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट। अगर मान लो हमने क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हमें डोमेस्टिक सेल्स भी गिवन है, एक्सपोर्ट भी गिवन है, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे। अगर केवल खाली सेल्स गिवन है और साथ में एक्सपोर्ट भी गिवन है, तो हम एक्सपोर्ट को नहीं लेंगे, हम खाली किसको लेंगे? Sales को. ठीक है, सेल्स को लेंगे, वहां पे एक्सपोर्ट को नहीं लेंगे। नेक्स्ट, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जैसे दूध होता है, दूध को हम जमा देते हैं, दही बन जाती है, दही में से घी अलग निकालना, लस्सी अलग निकालनी है, उसको बोलते हैं वैल्यू एडिड। रियल में जिसको बोलते हैं, अब मेन चीज निकालनी है वैल्यू एडिड, कि कितनी वैल्यू एडिड की? 8 लाख रुपए की टोटल ग्रोस, मतलब उनके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट था, लेकिन उसमें किसके घर मतलब प्रोडक्शन यूनिट लगाई गई थी? हमने ईशा के घर लगाई थी ना, लेकिन रिया बहुत सर कभी आप क्या कर देने वाले अगर चल ठीक है, रिया ने कहा नहीं बेना ये गलत है, हमें 8 लाख रुपीस तो ग्रोस है। रिया का अकाउंट बहुत अच्छा है, ईशा इकोनॉमिक वे से बहुत अच्छी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में, और मतलब ईशा इकोनॉमिक्स में, और रिया किस में है? अकाउंटिंग टर्म्स में। तो रिया ने हेल्प की, कहा नहीं डियर सिस्टर, अगर वैल्यू आउटपुट 8 लाख रुपीस है तो हमने रॉ मेटेरियल भी तो खरीदा था, तो हम रॉ मेटेरियल को क्या कर देंगे?
माइनस कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि ये कहां से, ओब्वियसली 8 लाख रुपए हमारा प्रॉफिट नहीं है, हमें मोबाइल खरीदने के लिए कुछ सामान, मीन ओब्वियसली वी हैव परचेज्ड रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल यहाँ पर क्या आ जाता है, आईसी आ जाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो कहा कि हमने डोमेस्टिक परचेज किया था और कुछ माल हमने विदेशों से भी मंगवाया था। ठीक है, रिया मतलब कंप्यूटर पे लगी रहती है, फोन पे लगी रहती है, कॉन्टेक्ट है, तो उसने इंपोर्ट कर लिया था कुछ टेक्निकल इक्विपमेंट जो हमें मोबाइल बनाने के लिए चाहिए, मशीन चाहिए, तो वो विदेशी उन्होंने इंपोर्ट कर लिया। और कुछ रॉ मटेरियल दे हैव परचेज्ड फ्रॉम डोमेस्टिक परचेज, डोमेस्टिक मार्केट। तो दोनों ही चीजों को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, आउटपुट, यानी 8 लाख में से हम माइनस जो बाहर से खरीदा था, कितने लाख रुपए का हो सकता है, 7 लाख का। तो इजिकल टू जो बचा है, मानो हम कहते हैं यहाँ पे 8 माइनस माइनस हम कहते हैं भाई 7, इजिकल टू कितने का प्रॉफिट हो गया, 1 लाख। अब रियल में वैल्यू एडिड कितना हुआ है प्रियंका? हेलो, यस सर। रियल में कितना वैल्यू एडिड हुआ है, 1 लाख का। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना हो गया उनको, 1 लाख रुपीस का। अब नेट निकालेंगे, अभी थोड़ा सा नेट नहीं निकला, अभी क्या निकालेंगे, नेट निकालेंगे। नेट में क्या किया उन्होंने, ग्रोस वैल्यू एडिड, GVA, ग्रोस वैल्यू एडिड है, ये ग्रोस है, माइनस डेप्रिसिएशन। इसमें से जो मशीन की टूट फूट हुई है, जो डेप्रिसिएशन अच्छी तरीके से आप समझ सकते हो क्या होता है, जो टूट फूट होती है वो भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास बचा कितना, मान लो हम एज्यूम करते कि 1 का प्रॉफिट हुआ था, माइनस उसमें से क्या कर देंगे, थोड़ा सा हम 40 हम 0.4 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे कि हमारा 0.4 है, 40% हमारा टूट फूट हुआ है। तो 0.6, 60,000 हमारा क्या बचेगा, दिस इज ए ग्रोस, दिस इज नेट वैल्यू एडिड, वो भी किस पे बचेगा, MPP, मार्केट प्राइस पे। फिर बाद में आते कि नहीं DS, इसमें से नेट भी माइनस क्या निकाल देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी माइनस कर देंगे, 0.6 इजिकल टू 60,000। अगर उसमें से हमने फिर माइनस कर दिया, कितना माइनस कर दिया, 0.1%, 1 पॉइंट ही हमारा टैक्स लगता है, इजिकल टू 0.5 हमारे कहां तक पहुंच गए, यानी 50,000 वो हमारा नेट वैल्यू एडिड फैक्टर कॉस्ट, वो हमारा क्या माना जाएगा, NDP, नेट डोमेस्टिक या नेट वैल्यू एडिड, एक ही बात है। डाउट है किसी को भी यहाँ पे? हेलो, नो सर। बात आती नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालते हैं, अगर आपसे नहीं पता कैसे, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। कई बार क्या होता है कि इक्वेशन में आपके पास सब्सिडीज है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, आपको इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है, तो आप निकाल सकते हो। तीनों में से आपके पास एटलीस्ट कितने टर्म्स होने चाहिए, 2 टर्म होने चाहिए, तीसरी टर्म आप इजिली कैलकुलेशन प्लस माइनस करके निकाल सकते हैं। अब यहां तक अगर फिर भी डाउट हो तो यू कैन अगेन आस्क फॉर मी। नेट वैल्यू एडिड इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, प्रोडक्ट मेथड कर रहे हैं, जिसमें हमारी 3 टर्म हमेशा यूज होंगी। द फर्स्ट टर्म इज वैल्यू ऑफ आउटपुट, नेक्स्ट IC, एंड द थर्ड इज वैल्यू एडिड। नेट वैल्यू एडिड इज इक्वल टू NDP, MPP। FC कन्वर्ट करना तो आपको पता है, मैंने बताया था, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। नेट नेशनल इनकम कभी भी निकालते तो किस पे निकालते, FC पे। नेट वैल्यू एडिड FC प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होता है कि हमने फैक्टर इनकम विदेशों से कितनी कमाई है। हमारे देश का कोई बैंक है, अगर वो अमेरिका में सिचुएटेड है, तो उससे होने वाली जो इनकम है वो हमारी नेट फैक्टर इनकम होती है। रिलायंस कंपनी है, विदेशों में काम कर रही है, तो उससे होने वाली जो इनकम है उसको क्या मानेंगे अपने देश में, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कैसे नेट कैसे निकालते हैं, टोटल फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, कितने विदेशों से हमने कमाई, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, कि हमने विदेशों को कितना पे किया। तो दिस इज कम इन द कैटेगरी ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। हेलो प्रियंका, स्नेहा, आ रहा है समझ में?
Yes, sir. Yes, sir. लेट्स सी। अब उसके बाद हमारा Sir, enough for today. अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, को फाइनल एक्सपेंडिचर तो करवा दे। Sir, बस कल करा देना। नहीं ऐसा कर लो, 10 मिनट और सुन लो, मैं एक्सपेंडिचर मेथड बता देता हूँ, थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ इस बार, ठीक है, देर नहीं करता। फाइनल एक्सपेंडिचर जो मेथड जो पूछा था कल आपने, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। फाइनल बिल्कुल मेन पॉइंट बता रहा हूँ। फाइनल कंजम्पशन, इसके 3 स्टेज होंगी। द पहली स्टेज होगी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर क्वेश्चन में गिवन है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, साथ में गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन भी दिया है, प्राइवेट भी दिया है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे प्रियंका, इग्नोर कर देंगे। हम किसको लेंगे, फाइनल कंजम्पशन। Final अगर expenditure. फाइनल कंजम्पशन नहीं गिवन है तो हम किसको लेंगे, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट फाइनल Private. कंजम्पशन। पहला क्लियर है, पहला टर्म, आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। Yes, नेक्स्ट sir. पॉइंट प्लीज, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखो सेकंड स्टेज में थोड़ा सा, सेकंड स्टेज ही मेन है, बाकी यही जी है। ये नेट एक्सपोर्ट थर्ड स्टेज क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। Import. सेकंड स्टेज को थोड़ा सा समझते हैं, ग्रोस टोटल डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। अब Invest. डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड है, इसको 2 हिस्सों में यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं। हम जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, वन इज द फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड वन इज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट या चेंज इन स्टॉक। इसके 2 मेन पार्ट है। द वन इज ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और सेकंड पार्ट है चेंज इन स्टॉक। जब हम फिक्स की बात करते हैं तो उसका दूसरा नाम भी रखा गया है मैंने, ग्रोस डोमेस्टिक, सेम है। मैंने कहा डोमेस्टिक कैपिटल डिवाइडेड, जो डोमेस्टिक कैपिटल है वो 2 हिस्सों में डिवाइड है, वन इज फिक्स में और वन इज इन्वेंटरी। इन्वेंटरी यानी जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम फिक्स बिल्डिंग में इन्वेस्ट करते हैं या फिर हम रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट करते हैं। जब हम पहला इन्वेस्ट करते हैं फिक्स में करते हैं तो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, या तो हम बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे या फिर गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्ट करेगी या फिर इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड, यानी हाउस होल्ड खर्चा कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, हाउस होल्ड खर्चा कर सकता है, गवर्नमेंट कर सकती है, और वन इज ए बिजनेसमैन क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। 3 टर्म है, 1 2 3। अगर तीनों दिए गए हैं और साथ में क्या गिवन है, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल भी गिवन है, तो इन तीनों को छोड़ देंगे, हम खाली क्या लेंगे, फिक्स लेंगे। अगर गिवन है और चेंज इन स्टॉक भी गिवन है और साथ में ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी गिवन है, तो हम इसको पूरे को छोड़ देंगे, हम खाली क्या लेंगे, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ये नहीं दे रखा ऊपर वाला ग्रोस डोमेस्टिक है, फिक्स दे रखा है और साथ में चेंज इन स्टॉक दे रखा है, तो हम दोनों को ले लेंगे। अगर खाली चेंज इन स्टॉक गिवन है और ये भी गिवन है तो हम इसको तो कभी नहीं लेंगे, हमेशा पहले ही देखेंगे। ये बड़ा है, जब बड़े आते हैं तो छोटों को हम क्या कर देंगे, वहां पे इग्नोर कर देंगे। क्लियर। अब बात करते हैं इन्वेंट्री और चेंज इन स्टॉक, एक ही बात होती है, तो इन्वेंट्री को ले लो या चेंज इन स्टॉक को ले लो, या चेंज इन दोनों गिवन है, ऐसा हो नहीं सकता, या तो इन्वेंट्री मिलेगी या चेंज इन स्टॉक मिलेगा। नेक्स्ट, ये बहुत इजी था, जब मैंने कहा कि फर्स्ट को ऐड कर दो, सेकंड को ऐड कर दो, थर्ड को ऐड कर दो, तो हमेशा क्या आएगा, जीडीपी, और वो भी किस पे निकलेगा, हमेशा एमपी। बाकी आप कर सकते हैं जीडीपी के बाद। दोबारा देखिए, पहला पॉइंट सेकंड पॉइंट दोनों गिवन है और ये भी गिवन है, तो हम इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे। फिर इसके बाद आप समझ गए, डोमेस्टिक कैपिटल अगर है तो हम फिक्स को और इन्वेंट्री को इग्नोर कर देंगे, हम केवल किसको लेंगे, डोमेस्टिक कैपिटल को लेंगे। डोमेस्टिक कैपिटल नहीं गिवन है, फिक्स गिवन है और दोबारा चेंज इन स्टॉक गिवन है, तो हम दोनों को ऐड कर लेंगे। फिक्स नहीं गिवन है, वहां पे बिजनेस में फिक्स है, गवर्नमेंट में फिक्स है, हाउस होल्ड में है, तो हम तीनों को ऐड कर लेंगे। हमारा था जीडीपी मेथड। एक हमारा रहता है इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या होता है, इनकम को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, बहुत इजी है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस
और मिक्स इनकम। मिक्स आप इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 5 बार देखिए, बार बार देखते रहिए जब तक आपको ये पॉइंट क्लियर ना हो जाए। अब हम बात करते हैं कि मिक्स इनकम मेथड में इनकम के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कंपनसेशन ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग Operating सरप्लस और मिक्स मिक्स्ड इनकम। इनकम। जितनी बार आप इसको वीडियो को देखोगे, रिवाइज करोगे, सामने रखोगे, उसके बाद ही पॉसिबल है आप न्यूमेरिकल सोल्व कर पाओगे। ठीक है, लेट्स सी। अब कंपनसेशन को हमने 3 हिस्सों में बांटना है, 1, 2 और 3। द फर्स्ट पॉइंट मैंने हमेशा आपको दिया है वेजेस एंड सैलरीज। दोबारा फिर बता दूंगा, मेरी बात सुनो। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है कि वेजेस एंड सैलरीज की जो एक इनकम निकालनी है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कि मालिक के द्वारा एम्प्लॉय को क्या दिया जाता है उसको काउंट करना। बेसिक पे दी जाती है, डियरनेस अलाउंस यहाँ पर आएगा, डियरनेस, ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको ठीक करना पड़ेगा, डियरनेस। महंगाई भत्ता बोलते हैं इसको, हाउस रेंट अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, देर तक काम करने का, घर का खर्चा, महंगाई बढ़ने की वजह से जो अलाउंस एक्स्ट्रा दिया जाता अदर देन सैलरी, उसको हम अलाउंस बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ ट्रेवल है। ठीक है, ठीक है, मैं इसको दोबारा करवा देता हूँ, यही चाहते ना आप? ठीक यस है, सर। आई एम सेंडिंग दिस वीडियो जस्ट नाउ, प्लीज चेक दिस वीडियो एंड आस्क मी।